So after the break, all are get energized, All are ready to hear the class, no? Is it all ready? You have all taken lunch also, no? Okay, then I would like to I would like to welcome sir again to continue the session. So, dear teachers, in the first part, we have effective teaching. Okay, I'll tell you one thing very interesting. Let us be trilingual: English, Hindi, and Punjabi. I remember long back, I had a session in Punjab, district Patiala, and the principal was very strict. Fortunately, it was Cordova session. So Cordova head was also there. She said, when I entered in the campus, if you speak other than English, you will be fined for 500 rupees. I said, fine. Conversation only in English, accepted. Fine. So I had a session with the parents. So I met honorable principal. She said that, now see, we are Indians. We speak English only where we have to influence the pupil. If I'm coming from Shimla and stopped somewhere in the Punjab, police said, oh sir, I am a Professor Vipin Sharma coming from Shimla because I had a, oh jao ji jao. English is a license for your security and safety in society that you are educated. So I had a session with the parents. The principal strictly given me a warning that you have to speak only in English. So suddenly I said, okay, then I invited Shashi Tharoor aura in me. I said, let Shashi Tharoor come in me. The parents were sitting there. I said, what an ambience, exuberance and opulence of this august gathering. I am enthralled to see the doting care and affection by the honorable management sir, principal ma'am. They have got a doting care and affection, and I am really jubilant. I feel like a connoisseur. ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ खड़ा हो गया, कहता सर जी आपकी गुस्ताखी में कुछ आख सकता हूं। मैंने कहा आपको हिंदी आती है तो बोल दो, नहीं तो फिर हम उठ के चलते हैं। वैसे आप हो कहाँ के? मैं कहा गवर्नमेंट स्कूल पकड़ाना, पिंड दादू माजरा, तहसील राजपुरा, जिला पटियाला। यार तू पंजाबी है? मैं कहा फिर पंजाबी बोल रहा यार। मैं कहा प्रिंसिपल विल फाइन मी, कहता छड़ परे फीस असी देंदे हैं। So National Education Policy 3, the first lesson is that you have to communicate. आपने उसी भाषा में बोलना है जिस भाषा में बच्चा बोल सकता है, but if you can communicate. That's why a big round of applause for the teachers who are from Kerala. When they come here, they speak Punjabi very fluently. They learn Punjabi very fluently. Okay. So logic is that their teachers language को मैं important, सभ्य लैंग्वेज को तो मैं important समझता हूं, बट आपका मोड ऑफ लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है। अब हम सब्जेक्ट में कुछ डिस्कस करते हैं। एक सब्जेक्ट है, मैंने एक मुहिम शुरू की है। वैसे मैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल को ही पंजाब मानता हूं, अनडिवाइडेड पंजाब। तो मैंने एक मुहिम शुरू की है, पर्दा पंजाब। व्हेन आई से पंजाब मीन्स पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राइट। तो हमारे को बड़ा बदनाम किया गया है कि यहाँ उड़दा पंजाब, नशा करते हैं। इफ यू गो एनीवेयर, तो तुसी पंजाब तो हरियाणा तो बल्ले बल्ले, दे थिंक दैट कि वी सिंग ओनली।
You know the first man who went into space, Rakesh Sharma, he's from Patiala. He's from Punjab. There is one boy, Manish Gupta. He played a vital role in ISRO Chandrayaan. He's my student. तो हम लोगों ने बहुत लाइक लोग भी, लाला हरदयाल, यू टॉक अबाउट एनीबडी, तो प्रोफेसर बी एस सूद, ही वॉज वन ऑफ द नोबल नॉमिनी, बट प्रोफेसर अब्दुल सलाम को मिला था, पाकिस्तान के थे वो, लेकिन प्रोफेसर बी एस सूद के पेपर्स कुछ पॉलिटिकली लेट हो गए, उस वक्त थोड़ा सा हमारी सरकार की सुनते भी नहीं थे यूएनओ में, आजकल तो पूरी सुनते हैं, पता है ना आपको। सो डियर टीचर्स, एक सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, उस सब्जेक्ट से भारत भय मुक्त नहीं है। मैं बोलता हूं भारत मैथमेटिक्स भय मुक्त होना चाहिए। झूठ बोले, आज तक कभी किसी को कौवे ने काटा है? झूठ बोले कुत्ता काटे। तो कितने लोगों को मैथ्स टफ लगता है? हाथ खड़ा करो ऑनेस्टली प्लीज। यस, एक्चुअली फॉल्ट हमारा नहीं है, कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स के जो उस वक्त जो मैं कभी भी बच्चों में फॉल्ट नहीं निकालता, मैं हमेशा, हम लोग अपने आप में फॉल्ट निकालते हैं। अगर बच्चा बदतमीजी कर रहा है, क्रेडिट या डिसक्रेडिट, अच्छा बोल रहा है तो भी, बुरा बोल रहा है तो भी, स्कूलिंग एंड पेरेंटिंग पे जाता है। तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे लोग बहुत डरते हैं, लेकिन विदाउट मैथमेटिक्स लाइफ मिजरेबल है। अभी सर कुछ बता रहे थे कि एक बीम की कैलकुलेशंस कई दिन लगा दिए, और सर ने विदाउट कैलकुलेटर सिंपल अपने वे से कैलकुलेट करके वो बीम डाल दिया विदाउट सपोर्ट। तो प्रैक्टिकल नॉलेज का एप्लीकेशन जब हम करेंगे वो तभी होगा जब हम उसको यूज करेंगे। हमें बोल देते हैं a प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड सो ऑन, बट आई नीड, कैन समवन हेल्प मी? इसको एक मिनट रब कर दो, बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं, अच्छा नहीं, हमारे बोलते हैं बुरा मानोगे तो फिर क्या होगा? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, गॉड ब्लेस यू। सो बेसिकली लॉजिक क्या है कि मैथमेटिक्स के बिना लाइफ कुछ नहीं है, एग्रीड और नॉट? लेकिन जितनी भी मदर्स हैं छोटे बच्चों की, वो अपने हस्बैंड को पता क्या बोलती हैं कि जी 3rd तक तो मैंने पढ़ा दिया, हुण अगे जरा मैथ है ना मेरे हाथ दा बसदा नहीं है, ट्यूशन लगवा दो। एम आई राइट? वेल, मैथमेटिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंटरैक्टिव। हमने बड़ी मेहनत से, द क्रेडिट गोज टू ऑनरेबल मैम, इस कैलेंडर का हमने बड़ी मेहनत से ये कैलेंडर अरेंज किया। तो मैं जो छोटी क्लासेस में बच्चों को पढ़ाते हैं, 9th या 8th में, एक टीचर को रिक्वेस्ट करूंगा वो आए। एक चीज मैं आपको बड़ा क्लियर बोल दूं, आपके जो एमडी सर और मैम है, आपने डरना नहीं है, दे आर वंडरफुल पीपल। इन्होंने मेरे को इतना, जितना मैंने आपको कंफर्टेबल किया, इन्होंने ज्यादा मुझे कंफर्टेबल कर दिया। और सर नो साइकोलॉजी, सर ने मुझे खिलाया कुछ, उसके बाद बोलते जो जवान बंदे हैं वो एक और खा लेते, मैं वो भी खा गया। अब वो लंच की छुट्टी कर दी। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सच ए नाइस पर्सन। छोटी क्लासेस को, भाई मैंने पहले भी बोला, मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछना, आप मुझसे जो मर्जी पूछो, असी सूद समेत वसूलांगे जो गाना है। हाँ, सो आई रिक्वेस्ट एनी मैथ्स टीचर प्लीज ज्वाइन मी। Myself, Lamita Jindal. I am maths teacher in 7th A class. Good afternoon, everyone. I am Shanmugam. I am working as a maths teacher, क्लासेस class in 6th and 7th. ओके। अब मैंने एक लखनऊ में वर्कशॉप अटेंड की थी, तो
मुझे वहां कुछ सीखने को मिला। देयर इज वन स्कूल, वन टेस्ट स्कूल, 50,000 स्टूडेंट्स लर्निंग। तो मैं वो चीज आपको कैरी करना होगा आगे। पंजाबी च ना एक साडे पंजाब बोर्ड का कोटेशन है, पहले विद्या चादर होए। तो सारे मास्टर जी ने कहा ना मतलब कि अगर आप फेल हुई होगे तो विद्या का चादर होएगा, यानी कि ज्यादा स्टूडेंट हो जाएंगे। फेल नहीं, पहले विद्या में विद्या स्टूडेंट होती है। सब प्लीज आपको कष्ट दे रहा हूँ, ठीक है? आप इधर आ जाइए, थोड़ा इसको हाइट दे दीजिए, आप भी आ जाइए। Yes, sir. दिस इज एन ऑर्डिनरी कैलेंडर। जब आप कैलेंडर को देखते हो तो टीचर्स क्या फीलिंग आती है? है ना? अच्छा, फिर 7 8 मेरे पास चले गया 500, 9 10 को आई नहीं है। Salary. This was what I was going to say. एक डेट का और ख्याल करते ही 7 और 8 हाँ, 7 या 8 रात को 12 बजे फिर मैसेज कहिए ना नहीं आता, मैं तो मैसेज आ गया। देखो, आज तक जितनी भी मेरी कथाएं सुनी हैं उसमें सत्यनारायण जी महाराज की कथा में एक गरीब ब्राह्मण था और ऊपर से मैं टीचर भी हूँ, ब्राह्मण भी हूँ। तो बेसिकली टीचर बेचारा, आज मैं आपको करोड़पति तो बना के जाऊंगा, लिख के देता हूँ। अगर आपने मेरी बात फॉलो कर ली तो अगली वर्कशॉप में सभी लोग अपनी अपनी ऑडी में आएंगे। और पीछे लिखा होगा गलत से कहो हम टीचर हैं। ओके, दिस इज एन ऑर्डिनरी कैलेंडर। थोड़ा हाइट देना, राइट? आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं? ओके। जब कैलेंडर को देखते हो, कई तो लोग इसमें दूध का हिसाब, जैसे मैंने बोला लिखा होता है कि तो दूध कपड़े के लिए दत्ते के लिए पेंटा के लिए, है ना? और इस पे लिखा भी हुआ। लेकिन ये एक ऐसा मैथमेटिक्स हम स्टडी करने जा रहे हैं आज, जो मैंने किसी से इंस्पायर, मेरा अपना नहीं है ये, मेरा अपना वही है जो हम डिस्कस कर रहे थे। इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रोज। एक मैथ्स में डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस होता है सर। तो क्योंकि छोटी क्लास से जो टीचर्स ने, हम रोज एंड कॉलम, इसको बोलते हैं रोज, इसको बोलते हैं Column. Yes, sir. कॉलम। ऑलराइट, Yes, sir. वेरी गुड। ओके हो गया? Yes, sir. हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, हर टीचर को पता लगेगा। मैं मैथ्स नहीं बता रहा, कैलेंडर की कहानी सुना रहा हूं। आप पंजी तुसी इधर आइए, इधर ठीक है? डरते नहीं रहे? No, sir. ये 2 by 2 एलिमेंट्स कलेक्ट करो। 7 14 8 15, हाँ जी. इसका क्रॉस ऐड करो। Cross at 22. 15 plus 7 22. 8 8 and plus 14। 14, 22. अब कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, फिर सेलेक्ट करो 2 by 2, सर जैसे सेम नहीं, जो आपको मन करता है। 26 आएगा और इसका भी 26. ऐसा नहीं, 26 जी सारी क्लास में पढ़ाना आपका। ये बच्चे कह रहे हैं 9 और 17 26 और 10 26 सेम आ रहा है, मतलब क्रॉस जो हो रहा है वो सेम Diagonally इसको plus डायगनली, करते हैं। हाँ डायगनली प्लस करेंगे तो सम सेम आएगा, कहीं से भी लेंगे। अब मैं 3 और 4 मैं को गुस्सा आ गया, कहती 2 by 2 का है। 3 by 3 करो। तीनों का सर, हाँ, तीनों तीन। डायगनली। नहीं, हाँ जी। 8 15 22 9 16 23 10 17 24। अच्छा, हाँ, करो ऐड। 8 plus 24 32 22 plus 10 32 32 हाँ, जादू यस सर, ठीक है सर। कितनी जलन हो रही है। अरे है ना जादू? यस सर। अगर किसी को पता था पहले बता दो, नो सर। फिर तो अप्रिशिएट करना चाहिए। अब वो नवी सर कहते लाल प्रताप का कोई उपाय आया हुआ है, जादू है, तुम्हारा कितना है? लो पेज बदल देते हैं। परफेक्ट। यस सर। सेम अप्लाई करो किसी दो पे। 20 यस सर, 20 ठीक है आगे सर। है? यस सर। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं।
बोलो 5 प्लस 11 16 16 का एवरेज कितना हुआ? 8 8 6 प्लस 10 16 इसका एवरेज कितना हुआ? 8 7 प्लस 9 16 इसका औसत एवरेज कितना हुआ? 8 और वैसे भी ये एवरेज में मिडिल में औसत 15 आ रहा है सेम आ रहा है सेम आ रहा है ओके अब आगे चलते हैं लो सर उधर नहीं दिख रहा मैं लिंक शेयर कर रहा हूं नहीं रिकॉर्डिंग के बड़े बेनिफिट हैं मैंने 5 साल पहले एक वर्कशॉप की थी उसमें एक टीचर अब वो टीचर नहीं है मतलब थोड़ा छोड़ा मैंने लेकिन उस सबको अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बता देखो मैं कितनी एक्टिवली स्मार्ट लग रही हूँ विदाउट फिल्टर 2 3 4 5 6 7 8 देख रहे हो ना यस सर 2 plus 8 average 5 3 plus 7 average 5 4 plus 6 average 5 टोटल कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 एवरेज क्या है 5 5 into 7 5 into 7 35 अब जरा ऐड करो 2 plus 3 5 5 plus 4 9 9 plus 5 14 14 plus 6 20 आगे 27 आगे 35 यस तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपका नहीं ठीक है सो ये आप कुछ पूछना चाहते हैं तो रुको रुक जाओ थैंक यू सॉरी आपने ये बीइंग ए टीचर आप तो स्टार हो आपको मैंने ऐसे कह दिया नो नो सर ऐसे ही बोला मैंने स्टे कभी कभी प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है डियर टीचर्स आपने नोट किया एक सिंपल कैलेंडर जो आपके घरों में लगा रहता है तो ये रिकॉर्ड किया किसने किया मालूम ये हमारी फिजिक्स में एक गॉस है जिनका गॉसियन सरफेस है वो कहते थे कि किसी भी चार्ज के अराउंड कोई भी क्लोजिंग सरफेस है उसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 8.85 10 to -12 coulomb square meter square newton inverse are you getting what I am saying are you getting what I am saying समझ आ रहा है कुछ आना भी नहीं चाहिए गॉस साहब क्लास में बैठे थे जब आपका मन नहीं होता ना पढ़ाने को तो सीसीटीवी से तो अब भगवान से तो डरते नहीं अब डरती सीसीटीवी से है और आपको ये भी पता है कि चेयरमैन साहब स्कूल में है नहीं तब भी स्कूल देख रहे हैं वो मोबाइल से मैडम ये क्लास नर्सरी क्लास में शोर क्यों है सर का फोन दूर से आ जाएगा बिकॉज़ टेक्नोलॉजी आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग तो डियर टीचर्स जब आपका मन ना हो पढ़ाने को तो मैं क्या करूंगा आज ना अंदर से नींद आ रही है आज ना सरप्राइज टेस्ट लेते हैं अब वो सरप्राइज टेस्ट भी गले में खाया का फंदा है पूछो क्यों चेक करने के लिए पड़ते हैं मेरे साथ बोलो इट इज चेक करने के लिए अरे बोलो यार इट इज इजी इजी टू सेट अप टू सेट अप a question paper बच्चा क्या बोलता है मैम मैम it's इट्स difficult डिफिकल्ट to टू attempt the question paper अब टीचर्स पता क्या बोलते हैं बेटा it's hell to evaluate a question paper मानते हो ना यस 80% तो आप फिजियोथेरेपिस्ट पे जाते हो तेरे किसी टीचर को नहीं गर्दन जड़ी है तकिया छाड़ दो फिर कलर लगाओ राइट कई तो जान के भी लगा के आ जाते हैं स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ फायदे होते एक्स्ट्रा कम नहीं मिलता well dear teachers Gauss was a student and his teacher was not interested to take the class तो Gauss की क्लास में Gauss के सर ने सब बच्चों को बोला राइट ऑन 1 2 3 बॉस ने 2 सेकंड में लिख के दिखा दिया बोलता यार बड़ा तेज है कहता अब मैं 1 के अब और लिखो उसने वो लिख दिया इवन लिख दिया बोलता यार ये बड़ा जल्दी कर रहा है कहता चलो ऐड कर दो 1 to 100 कहता सर 50 50
1 to 100, average 50, total 101, 50 into 101, 50, 50. So this is how the great mind think. Creativity is very important. Madam Sethi, just she imitated. And I really salute such teachers जो अपने प्रोफेशन में तत्व प्लस लीन हिंदी तल्लीन है। तो जैसे ना कोई बंदा इन लव होता है 24/7 उसी के बारे में सोचता है, तो आपको भी अपने सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। और आपने बोला इफेक्टिव टीचिंग में टीचर इज ऑलवेज ए स्टूडेंट, तो वो कैसे कैसे तो बताएगा। बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेवियर करते हैं, मतलब बच्चों के साथ उनको हंसा के फिर सिखाया जाए, उनके साथ फ्रेंडली बिहेव किया जाए, तब हो सकता है। फिर आपको अभी बताया तो था कि वो बुलाएंगे पीएन, क्या बच्चों से बहुत फ्रेंडली हो। नहीं सर, एक वे होता है थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा भी नहीं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम शेयर करेंगे, उनके बारे में पूछेंगे क्या हुआ, फिर बच्चे इजीली हो जाएंगे हमारे साथ। और प्रॉब्लम फिर वो अपनी प्रॉब्लम से बताएंगे ना कि हमें ये सब नहीं आता या कुछ भी है। पंजाबी च एक कहावत है, इन्हें मिठे भी न बनो कि बंदा खा जाए, और इन्हें कोड़े भी न बनो खा के तो दे। सेम इज द केस विद अस। टीचर को ना फर्स्ट ऑफ ऑल साइकोलॉजी को पढ़ना बड़ा जरूरी है। साइकोलॉजी कुछ टीचर्स बाय डिफॉल्ट होते हैं, वो बच्चे के फेस, और मैंने एक बार एक बच्चे को तगड़ा हड़का दिया, ठीक है, वो भी सुबह सुबह मैंने एक पंगा पड़ गया। मैं कहा कि यार एक बुढ़ा भी है सर, तो मतलब बैठे बाल बुढ़े लोग पता नहीं चलता। मैं किसी भी तरीके से उसको कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, और मेरे को ऐसे देखा जैसे पुरानी पिक्चर है ना, वो देखता था प्रेम चोपड़ा से, तो वो ऐसे देखे। मैंने बोला यार अब लास्ट टू लास्ट पीरियड क्या करो। I just hugged him. I said यार मेरा मन बड़ा दुखी है। And he hugged me and he started crying. जब बच्चा रोना शुरू कर दे और बोले कि सर आपने मेरे को पनिश किया, आप गलत नहीं थे, वो भी डेफिनेशन ऑफ टीचर। जाते हुए ना माता रानी पसंद करते थे जो, और नहीं तो क्या, जिस बस में आप जा रहे हो उसी बस में वो बैठा है, वो बस मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, ताकि मैं सवेरा। उस बच्चे को पॉजिटिव करके भेजो तो थिंग्स विल बी ओके। ये सबसे इंपॉर्टेंट टूल है स्कूल में आज की डेट में, जब आप पनिशमेंट। तो आप गुड स्टूडेंट कैसे बनोगे? अब मेरा क्वेश्चन है सभी टीचर से, थोड़ी देर के लिए एमडी सर भी बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, वो भी टीचर हैं, गुड जॉब, हम सब लोग एक हैं। व्हाट इज आवर सोशल सिक्योरिटी? मेरा एक क्वेश्चन है, व्हाट इज आवर सोशल सिक्योरिटी? This is my question. ये लाइन वर्ड जो है ना हमारी जिंदगी में बदल सकता है। अगर आपने समय एक को भी बदल गया, आप बने नस्कर हो तो बताएगा हमारी सामाजिक सुरक्षा क्या है? किसी गवर्नमेंट टीचर को पूछो, मिली जावे 31 को बाद 70,000 in your account. सारी सोशल सिक्योरिटी की है। It's a good question. Ask me. यस सर। देखो मैं क्वेश्चन भी खुद ही जनरेट करवाया। Ask me. व्हाट इज अ सोशल सिक्योरिटी? मेरे को बोलो ना, आपके तो है। What is my social security? सर Okay. Thank you dear teachers. अगर कोई क्वेश्चन है तो, नहीं तो आप जस्ट थैंक यू। Social security of a teacher is its star value.
अब बोलो हमें फेशियल कराना पड़ेगा या बॉयज लड़के बोलेंगे हमें जिम जाके बाइसेप्स बनाने पड़ेंगे। स्टार वैल्यू है कंटेंट। कंटेंट है सब्जेक्ट का। आप अपने सब्जेक्ट पे कितनी मेहनत करते हो? आप अपने सब्जेक्ट पे कितनी मेहनत करते हो? अब आप बोलोगे सर मिलना तो वही है, की लोड है। यहां आप मैं फिर बोल रहा हूं, आपकी बात नहीं कर रहा। यू आर द बेस्ट वन। जहां दुनिया का सबसे बेस्ट टीचर का टीचिंग खत्म होती है, आपकी शुरू होती है। आपकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं कंटेंट कैसे तैयार करूं, दैट्स क्वेश्चन। मैंने बोला गुड टीचर इज ऑलवेज अ गुड स्टूडेंट। स्वामी विवेकानंद कहते हैं इट्स इजी टू सेट अप एम, लक्ष्य बना लेना बड़ा आसान है। इट्स डिफिकल्ट टू मूव ऑन दैट ट्रैक, उस पे चलना मुश्किल है। बट इट्स वेरी चैलेंजिंग टू अचीव दैट विदाउट डेविएशन। समझा? लेने गए आप सूट, रास्ते पे आप गोलगप्पे खा के चाट खा के आ गए, इतने में दुकान बंद होगी, तो डेविएशन। सो लॉजिक क्या है, हमें करना क्या है? सबसे पहले हम यही क्लियर करें, एक टीचर एक पायलट है, वो जहाज लेके जा रहा है, यानी कि क्लासरूम लेके जा रहा है, जिसमें पैसेंजर्स बैठे हैं, यानी कि बच्चे बैठे हैं। अब बोलता है आई एम कैप्टन नागवंश, 613 flight Indigo, Chandigarh to Bangalore. Right now, we are flying at an altitude of 37,000, right above the Nagpur. My co-pilot, Captain Sandhu. Sandhu साहब, नागराज सर, एमडी साहब को फोन लावा, हॉटलाइन दे क्यों? तनख्वाह बनाना है कि जहाज क्रैश करेगी? सैलरी बढ़ाते हो या जहाज को क्रैश करें? The job of a pilot is safe takeoff, safe landing. कभी आप बाय एयर जब जाते हो तो वो क्रू मेंबर्स बाहर खड़े होते हैं, एयर हॉस्टेस को कहता है हेलो मैम बढ़िया, तो पायलट को थैंक यू नहीं बोलता है, तो थैंक यू बोलना चाहिए आपको। A safe landing with least turbulence, least same way you are the pilot, और आपके जितने भी बच्चे हैं वो आपके पैसेंजर हैं, उनको लक्ष्य तक पहुंचाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बदले में आपको क्या मिलता है वो मैटर नहीं करता। अब आप बोलेंगे सर इसका सोशल सिक्योरिटी से क्या लेना देना, वो मैं बताता हूं। आप अपना कंटेंट कैसे तैयार करोगे? मैं अपनी बात करता हूं, मैं अपना कंटेंट कैसे तैयार करूंगा। मैं एक स्मार्ट बोर्ड अगर बजट में है तो, नहीं तो एक स्मार्ट टीवी, वो तो सभी के पास है। एक मैं लगाऊंगा डेस्कटॉप, ऐसी ही चेयर, ऐसा ही टेबल, उसके सामने मैं बैठूंगा और मैं लगाऊंगा एक रजिस्टर। पुराने वक्त में एकलव्य को द्रोणाचार्य चाहिए था, नहीं मिला, तो उसने स्टैचू बना के प्रैक्टिस की और अल्टीमेटली ही इज बेटर देन अर्जुना और अर्जुन। लेकिन आज की डेट में YouTube पे एक से एक द्रोणाचार्य मिलेंगे और आपको अंगूठा देने की जरूरत नहीं। A teacher is always a student। तो आप कोई भी टॉपिक तैयार कर रहे हो, जैसे केमिस्ट्री टीचर्स कितने हैं? हाथ में एब्सेंट है। एक्चुअली ना 11th 12th के टीचर्स वर्कशॉप लगाते हैं, उसका रीजन बताता हूं। Well, we have to take one batch, you know, and will not waste our time. Anyway, मान लीजिए केमिस्ट्री टीचर है, बता देना उनको कि उन्होंने पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ाना है। तो जैसे ये इंस्पायर्ड बाय सेफ्टी मैन,
कि all gas molecules are spherical. सबको समझ आएगा, गैस के मॉलिक्यूल्स सफेद होते हैं. They are very hard to compress. They move in random directions. Their collision is instantaneous. Their distance is called free path. Their collision is elastic. Their volume is negligible as compared to the total volume of the gas. Their impact on the wall causes pressure. अब क्लास में मान लो नवी सर केमिस्ट्री के टीचर हैं, जब वाले में जाएंगे, अगर ये पंजाब साइड जा रहे हो, और नवी सर सीधी नहीं रहा, बड़ा बम्बई यार, अगर ये हरियाणा वाले बाजार में जाए, भाई बड़े अच्छे पढ़ा रहे हो, इनके टीचर है, बम भाई इसी के पास पढ़ना है, क्या आना शुरू हो गया? आप लोग क्या कर रहे हो? 15 करोड़ की जमीन जायदाद के मालिक को जमी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा. अरे उसको कुछ ऐसी टेक्निक ढूंढो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को एक्सप्लोर करो, उसमें इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें मिलेंगी आपको. आप अपने आप को ट्यून ही नहीं करते. आई एम एन इंजीनियर बट आई टेक फिजिक्स. दो physics is the mother of engineering. Without mathematics, I cannot take physics. अब एक बंदा बोलता है तो मैथ्स जानता है, मैं कहा sin 2a to sin a cos a to tan a पर 1 plus tan square a cos 2a cos square a minus sin square a 3 sin a 3 sin a minus 4 sin cube a MCR n factorial n minus r factorial into r factorial NPR n factorial n minus r factorial factorial 0 equal to 1 plus x to n 1 plus nx n into n minus 1 upon 2 factorial x square and so on. I have to display variance of x degree pi upon 180. I have to display 2 plus 2 equal to 5. 2 plus 2 equal to 5. Yes? Now, look. A square minus b square इस सभी ने सीखा हुआ है. A plus b, a minus b. If a is equal to b, a square minus a square, a plus a minus a. If I take a common, a minus a, 2a minus a. This all gets cancelled. 1 equal to 2. Adding 3 on both sides, जो सोचे, जो चाहे, वो करके दिखा दें. हम वो हैं जो दो और दो. तुमने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, और नहीं किसी से. हम ये ऑरा लेके आओ भाई. अब छुट्टी हुई थी अपना 3 नंबर खोटी कर दी, मैं कहता हूँ उसका बात करिए. आपका क्या है? पहले बच गई, मुझे लगे पहले बच गई. बचने का दिन बड़ा लंबा लंबा होगा. ठीक है, ये वक्त भी गुजर जाएगा. भाई आपको पता ही नहीं आप हो कौन. बच्चों को बोलो 2 plus 2 equal to 5. अब ट्यूशन वाला क्या करता है? ट्यूशन वाला इस तरह के टोटके डालता है. जाओ पूछिए मैडम, 2 plus 2 equal to 5 गलती में है. मैडम जी, हाँ मैडम जी 2 plus 2 equal to 5 करता है. बदतमीज. 2 plus 2 equal to 5 कितना? 2 plus 2 equal to 4 का. मैडम जी इसमें तो गलती है. मैडम इज नॉट एबल टू टेल. वो जो ट्यूशन वाला अंकल, भैया, दोस्त, बड़े वो नंबर बना गया. उनकी ऐसी की तैसी. स्कूल में इतना टेस्ट दे दो, स्कूल में ही इतना टेस्ट दे दो. वो बड़का मार के बोले पढ़ना तो नबी सर को पढ़ना पढ़ना. मैं शुरू कर दो सर, पढ़ा लो. You got my point? This is a star value. अब एक बंदा बोलता सर ट्यूशन पढ़ाया करिए. हाँ, चोरी चोरी चुपके चुपके. सर स्कूल में अलाउड नहीं है, बिल्कुल मत पढ़ाओ स्कूल के बच्चों को. सर बच्चे पढ़ाना चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ. एमडी सर को एफिडेविट लिख के दो कि सर स्कूल का बच्चा कोई भी मुझसे पढ़ेगा, मैं फीस नहीं चार्ज करूंगा या नहीं करूंगी. क्योंकि स्कूल टाइम में तो आप पढ़ा ही नहीं सकते, बिकॉज स्कूल में 3 बजे तक ही वही सिलेबस भी खत्म होता. आप लोगों को लॉटरी क्यों पढ़ाना? अच्छे सोचो जरा. जब आप 10 बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हो और उनका रिजल्ट अच्छा दे रहे हो, तो 10 आगे जाके नेटवर्क मार्केटिंग, तो 10 और को बताएंगे. दूसरे स्कूल का बच्चा आपके पास पढ़ेगा, उससे पैसे दे दो. फिर उसकी मम्मी बोलेगी जैस्मिन मैम, am I right?
जैस्मिन मैम के पास ये पढ़ने जाता है, बहुत अच्छा पढ़ा रही है मैम KKCS से। जैस्मिन मैम आपके स्कूल में एडमिशन करवा लें नेक्स्ट ईयर, कोशिश कर लेती है। अब रिसेप्शन पे जो बंदा आ रहा है नई एडमिशन, वो यही पूछे कि जैस्मिन मैम के क्लास में बच्चे ने पढ़ना है, एडमिशन लेनी है। तो रिसेप्शनिस्ट जब खबर डालेगी स्टाफ में कि हर बंदा जैस्मिन के नाम से यहाँ आ रहा है, तो जैस्मिन मैम आपकी स्टार वैल्यू बनेगी। फिर आप चले जाओ एमडी सर के पास, सर मेरे करके 70 एडमिशन हो गया। सर पहले से मैडम मुझको सब पता, मैंने पहले बता दिया, पर किसी को मत बताना। यस, आई वांट माय टीचर्स शुड बी वेरी रिच। लेकिन आप विलिंग ही नहीं हो कुछ करने का। आपकी बात मैं फिर पूरा आपकी बात अपने अंदर का हनुमान तो जगाओ ना यार। हनुमान जी के पास एंटी ग्रेविटोन था, वो एंटी ग्रेविटोन मंत्र से उड़ जाते थे, तो व्हाई डोंट यू क्रिएट दैट। अब एक टीचर और बोलता कि सर सुपरस्टार कैसे बनेंगे। सुपरस्टार बनने का तरीका सभी टीचर्स के लिए, वंस इन ए वीक स्कूल की परमिशन से आप स्कूल के लोगों के अंदर ऑनलाइन सिलेक्टेड सब्जेक्ट की क्लास दो। जब आप ऑनलाइन पढ़ाओगे तो आपको केवल ओनली पेरेंट्स, बच्चा भी देखेगा, मां भी देखेगी, पिताजी भी देखेंगे, और आपको पता ही नहीं है आपके असली प्रमोटर कौन है। आपके असली प्रमोटर दादा दादी, अच्छा ये उदयपुरी है, पढ़ाती है। सुबह सुबह जब वो मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं तो स्कूल की प्रमोशन उसी वॉक करती है। ओ भाई KKCS दे टीचर बड़े बढ़िया, मैं जल्दी जाऊंगा, संडे है ना, वो क्लास में भी लाऊंगा, बहुत बढ़िया पढ़ाती है मैडम वो। डोंट यू थिंक यू आर गेटिंग फेमस। जब आप फेमस हो रहे हो, अड़ोस के बच्चे भी आके आपकी क्लास अटेंड करेंगे, हाँ या ना, है ना, वो दूसरे स्कूल से है ना, आपकी ब्रांड वैल्यू बन रही है, स्कूल की ब्रांड वैल्यू बन रही है। व्हाई डोंट यू थिंक लाइक दैट। सूट लैन गई साडी कुड़ी, मैडम जी ਤੁਸੀਂ ਹੋਈ ऑनलाइन पढ़ाਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ पढ़ाਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ रेट ਇਹ है। Why don't you create that value in you? मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप ऑलरेडी हो एक जन। कैसा लगा ये पॉइंट? जब तक है आपके पास पैसे, सब पूछेंगे आप हैं। ये बातें भी तभी आती हैं जब आपका पर्स भरा हो, ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट के भैया देखिए बिना पैसे के लाइफ नहीं चलती। बाकी आइडियल बातें हैं, वो आइडियल बातें भी तब चलती हैं जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। फाइनेंशियली स्ट्रांग, मैं तो कहता हूँ हर हफ्ते एक सूट खरीद दो और हर 15 दिन बाद फेशियल करो, आपको छड़ के। डू यू लाइक इट? डू यू लाइक इट? अब कई टीचर्स बोलेंगे सर कर देते काम करने में मैं, फिर वो भी करो। अगर आपने स्टार वैल्यू बनाई है, अपनी इनकम बनाई है, इनकम जनरेट की है, वो कर लो। और आजकल तो वैसी जमाना बड़ा उल्टा है, 10 मिनट में ब्लिंकिट भेज देता है, आधे घंटे में स्विगी या जोमेटो ला देता है। तो आप अपने कैलिबर को अंडरस्टैंड करो। बहुत कुछ है सिखाने को और सीखने को, प्रोवाइडर हम वही टेप चला रहे हैं जो हमने अपने टाइम में चलाई हुई है। आज की डेट में आप किसी बच्चे को बोलो क्या दुनिया में आए हैं तो जीना पड़ेगा, जहर पीने को छोटे बड़े को गाना जट लेके आया था, निकलो कुर्बान मेरे को हटाया थोड़ी ऐसी कैसी कर दांगे खट्टे चक्कर आके। These people like this kind of music and to look बहुत बढ़िया, very nice. Am I right? So star value is very very important. So any question from the teacher side? मुझे शिकायत कभी कभी होती है, देखो you have been blessed with Jupiter today, हालांकि आज मंगलवार है, but तुसी सारे blessed by Jupiter हो,
because you're wearing the yellow. That gives the frequency of Jupiter planet. So you are all teachers, basically the guru. Any questions from your side? Yes. You have to walk and come here. Can you walk? Oh, sure. And yes. इसको पकड़िए. Yes. Sir, how can we take our students' energy from social security to self-actualization? Many times I face difficulties. There are many clashes when I take them from creating social security to self-actualization. They confuse themselves. Then they ask, why do we need to study if the ultimate goal is self-actualization? एक बार हिंदी में मैं पंजाबी च भी दस दूं. और खबर आर यू फ्रॉम पंजाब? Yes. फिर तो दस. मैं बोलता नाल व्हाई मींस क्यों? नहीं सर, ऐसे ही. देखिए, हम स्टडी करते हैं तो कुछ बनने के लिए करते हैं. अल्टीमेट गोल क्या है? जैसे सर ने काफ़ी बार बताया, पैसा. तो वो पैसा कमाने में हम अल्टीमेटली क्या फील करते हैं आफ्टर मैनी ईयर्स? आवर लाइफ इज ऑलरेडी वेस्टेड. वी हैव नॉट achieved the ultimate goal of life, that is happiness, internal happiness. That means we have not achieved our self. Self is important, that connects us with God. So in earning that money and social security, fame, sorry I again, कंटिन्यू. तो हम भूल जाते हैं हम हैं क्या, हम क्यों आए हैं यहाँ, हमें चाहिए क्या अल्टीमेटली. तो अगर मैं वहाँ लेके जाने की कोशिश करती हूँ बच्चों को, आई वॉन्ट टू कनेक्ट दैम फ्रॉम सोशल सिक्योरिटी टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि अल्टीमेट गोल आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ही होना चाहिए. मतलब अपने आप को जानो कि आप क्या हो. तो फिर क्वेश्चन अराइज होता है, वो पूछते हैं कि फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं, वाई आर वी स्टडिंग. वेरी गुड. थैंक यू. व्हाट योर नेम? सरिता. फुल नेम? सरिता जिंदल. God bless you, ma'am. Big round of applause for the question. और इसका मैं आंसर भी विद रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट दूंगा और आंसर ऑर्गेनिक होगा. देखिए, एक बार एक बंदा सड़क पे जा रहा था. मैं आपने बोला ना पढ़ क्यों रहे हैं, तो उसको बोला कि क्या है तुम्हारे पास? कहती है घड़ी है. कि दे दे. उसने घड़ी खोली, दे दी. कहते क्या आपके पास? कहते वॉलेट. उसने वॉलेट निकाल के दे दिया. कहते ये क्या आपके पास? कहता कार. कहते उसकी चाबी, वो भी दे दी. कहता और क्या आपके पास? कहता y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर सेकंड स्क्वायर थीटा h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g t इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा. राइट. Horizontal range is 4 times height. Whenever a body is having in motion, acceleration is directly proportional to the displacement. It is attracted towards the mean position called a simple harmonic motion. वो कहता ये क्या है? कहता ये भी ले जा. कहता ये क्या है? कहता इसी से तो ये सारा कुछ आया. मैम जी, पढ़ाई से कंडीशनिंग होती है. पढ़ाई से पैसा नहीं कमाया जाता खाली. मैं लाइन कहीं इसको वो टेलीविजन की तरफ तोड़ ना देना, राहुल गांधी वाला काम. पढ़ाई से कंडीशनिंग होती है. पढ़ाई केवल पैसा कमाने के लिए यूज नहीं की जाती. एक पढ़ा लिखा बंदा जो गरीब है, गरीब नहीं मैं बोलता उसको, एक पढ़ा लिखा अमीर, एक अनपढ़ अमीर गरीब कि बातचीत करने के तरीके से आपको उसके लहजे से, तहजीब से फर्क तो पता लगेगा. पढ़ाई अगर पैसा कमाने के लिए ही होती तो जितने भी आपकी क्लास में बच्चे होते वो सारे के सारे बिल गेट, स्टीव जॉब्स, अडानी, अंबानी, जिंदल, हिसार वाले वो बन जाते. नहीं, पढ़ने से कंडीशनिंग होती है. पढ़ने से बंदे की पर्सनालिटी डेवलप होती है. मेरी नजर में एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट टूल है
जो बच्चे को कंडीशन करता है। अब एक बड़ा फेमस कॉन्सेप्ट है कि जो पढ़ के भी ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਕਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਕੁਲਚੇ ਵਾਲਾ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ मन चाहता मैं यही ना बेचने शुरू कर दा। हाँ, अगर मैं कुलचा बेचूंगा आई एम प्राउड टू डू दैट, बट उसका रेट भी मैं फिर महंगा रखूंगा और उसकी पैकिंग ऐसी होएगी कि खोलने लिए उन 3 मिनट लग जाएंगे और कहेगा व्हाट ए हाइजीनिक पैकिंग। सो दैट इज एन एजुकेशन। तो व्हाट यू ट्रेन अ चाइल्ड इन स्कूल, not only the education, you train him to face so many hardships in life: patience, self-respect and respect for the elders, discipline, patriotism, sportsmanship, so many things. I quote Atal Bihari Vajpayee 90s में कि मैं पाकिस्तान मित्रों को ये बोलता हूं कि जो वो कर रहे हैं भारत को उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जो वो बीज बो रहे हैं, जब उसकी फसल काटेंगे तो उनका नाम निशान किसी को मिटाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही मिट जाएगा। डू यू फील सो इट्स हैपनिंग नाउ? डू यू फील सो ना? तो वाजपेयी साहब एक विजनरी हैं, ऑर्गेनिकली बोल रहे हैं, किसी ने लिखा नहीं है, वो ऑर्गेनिकली बोल रहे हैं। वो कहां से सीखा? वन लर्न्स थ्रू वन्स ओन ऑब्जर्वेशन। लॉर्ड चेस्टरफील्ड की प्रोज में, इंग्लिश वाले जानते होंगे, लेटर टू सन, हमें प्रोज होती थी, मुझे याद है। तो मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर लेट मिसेस गांधी को लेटर लिखते थे जेल से, एंड ही वॉज जेल्ड इन नाभा नियर पटियाला। तो उसमें वो लेटर्स जो हैं, उसमें वो लेटर जो उनको डालते थे उसमें कोटेशंस होती थी, कुछ चीजें होती थी। क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? स्कूल्स की जरूरत ही क्या? फिर हमें अपने बच्चों को कंडीशन करना है, उनको एजुकेट करना है, और जो सोशल सिक्योरिटी है वो एजुकेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है जिससे मैंने स्टार्ट में बोला था कि एक स्कूल खोल दो, 2 जेलें बंद करके, और एक स्कूल बंद कर दो, 4 जेलें बंद। और एक इम्पैक्ट आप भी देखते होंगे, मैं भी देखता हूं, मेरी ऑब्जर्वेशन है, मे बी रॉन्ग, बच्चों में वो कंडीशनिंग नहीं है जो हम में है। व्हाइट कलर की लाइट हर गाड़ी में सरकार ने लगाई है, क्यों लगाई है? नहीं जानता। और उसके नीचे भी लाइट सब होगी, व्हाइट है। रात को आप कार चला रहे हो तो व्हाइट लाइट आपकी आंखों में पड़ रही है और वो ग्रीन भी दे रहा है। अगर हम चलाते हैं, हम बोलते हैं दूसरे को कंफर्टेबल चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट तब भी हो सकता है अगर उसको ज्यादा देख रहा है, क्योंकि सामने वाले को नहीं दिख रहा। पहले कल्चर था, कोई बुजुर्ग जा रहा है उसको हेल्प करते थे, आज की डेट में वो मिसिंग है। इमोशंस नहीं है। आज की डेट में माँ अगर रो देगी, बेटा पढ़ ले, तेरे पापा बड़ी में, मम्मा ये इमोशनल ड्रामा मुझे पसंद नहीं। आई एम वेरी प्रैक्टिकल। इमोशंस खत्म होते जा रहे हैं बिकॉज कॉर्पोरल पनिशमेंट जो कॉर्पोरेट सेक्टर तैयार कर रहा है वो फुल ऑफ करप्शन कर रहा है। बच्चों में वो डर ही नहीं है। पहले बुजुर्गों का एक रिस्पेक्ट रहा है, आज की डेट में बुजुर्ग एक साइड पे खड़ा है, जैसे पुरानी टोकरी या एक पॉलिथीन के लिफाफे इकट्ठे करके रखा है। सो एजुकेशन, सेल्फ सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी इस बात बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ये उसको बहुत कंडीशन कर देगी, मेरा ये मानना है। अब प्रैक्टिकली हम सोचे कि इसका कोई फायदा नहीं है, वर्कशॉप का क्या फायदा है, वेस्ट ऑफ टाइम है, क्या लेक्चर है, जो ये लेक्चर दे रहे हैं मैं भी कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, इससे बैठ तो मैं भी सीख सकता हूँ।
लेकिन हम इकट्ठे बैठ के सुन रहे हैं, कम से कम आपका रोड कनाल तो हुआ कंसेप्ट का। तो चीजें ऐसी तो हुई ना जो हमारे दिमाग में रिबूट हुई, दोबारा से आएंगे, सोचने को हम मजबूर किए। सोशल सिक्योरिटी पे मैंने इसलिए बोला कि हम नहीं काम कर सकते, मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, मेरे पास पेट्रोल नहीं है, हाउ आई कैन डू वर्कशॉप। सोशल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है। और स्कूल में मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मंडी कुल्लू के पास एक जगह है गौहर, वहां मैंने बच्चों को ऐसे बोला, बेटा हाईवे के ऊपर कितने लोगों का घर है? 6-7 बच्चे सरकारी स्कूल के हाथ में, सर हमारा घर हाईवे के पास है। मैं कहा ठीक, मैं काम करोगे क्या? मैं कहा मैगी स्टार्ट कर दोगे। एक टीचर उठ के आई, क्या आदमी है ये? हाँ हमारे स्टाइल में मैगी बनाएंगे मेरे बच्चे। काग निबोली लेख है कोयल अमीरे। मैंने शाहरुख खान की फिल्म का डायलॉग है, माँ ने कहा था कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। मैंने बस तो शाहरुख खान से आप इंस्पायर हो, इससे नहीं होते। मैं तो इंस्पायर हूँ। एक लड़के का कॉल आया मेरे को आफ्टर 2 इयर्स, सर मैंने स्कूटी ले ली, सर मैंने पापा से पैसे लेने छोड़ दिए, सर 3 बजे तक स्कूल होता है, शाम को 2 घंटे हमने, सर एक आपने हमें टेक्निक सिखाई थी, गोलगप्पे चने भर के, वो भी बहुत देखते हैं सर, साथ में पढ़ाई भी होती है। वो बच्चा जो कर रहा है उसके पास ऑलरेडी बहुत लैंड है, वो सोचता है मैं कुछ न करूं। हम गांव के रहने वाले हैं, मेरे ग्रैंडफादर अच्छे रईस बंदे, पप्पड़ माल के बोलते जा गुरुद्वारे दी पर्चियां कट के छबील दिया, संक्रांत दिया। एक बारी मैं खुद ही सारी कट के 1000 रुपए देता, नोट पड़ी, नो गो बेल बजाओ, भागा पर संक्रांत बोलो, पर्ची कटाओ। मैं क्या क्यों? कहते भूल जा तेरे घरे ऑडिट खड़ी है, तेरे घरे ये खड़ी है। कभी ईगो नहीं होनी चाहिए। बाबा इकबाल सिंह जी की लाइन है, कम टू लर्न गो ईगोलेस। सो डू टीचर स्कूल इज अ प्लेस जहां हमारी ओवरऑल कंडीशनिंग होती है। और वो ऐसे तो नहीं जो बड़े बड़े टीचर्स को उससे बड़े बड़े पोस्ट पे राष्ट्रपति तक के लोग खुद जाके प्रोटोकॉल तोड़ के लेके आते हैं। So you can turn a life of a person। आप जिंदगी में एक भी बच्चे की जिंदगी बदल दोगे ना, मैं कहता हूँ बैकग्राउंड चले गया, आपको कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं। सोशल सिक्योरिटी में इसलिए बोलता हूँ, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में मेरा ये क्वेश्चन होता है कि आपको कल से बोल दिए कि आपकी यात्रा आज ही करोगे, क्या करोगे? Isn't a question? Isn't a question? मैं आज 491st वर्कशॉप कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं दिल से वर्कशॉप करता हूँ, इगोइस्टिक नहीं। और आई एम सो ग्रेटफुल टू कोडोवा कि कोडोवा ने मुझे ब्रेक थ्रू दिया। इट्स माय फर्स्ट लव। लेकिन लॉजिक क्या है? आप यकीन करोगे कि मैंने जिंदगी में जो भी सीखा है खुद से सीखा है। मैं घर में बोर्ड लगा के खुद को पढ़ाता था और मेरे अंदर कॉन्सेप्ट क्या था सर, जगह था क्या? रात को जागरण के विच माता रानी नहीं आती, तो मैं नकल उतारता सी अपने टीचर की, मेरे अंदर टीचर आ जाता। And I really tell you this thing, I get better learning. I don't know what makes me to learn better. When I start teaching myself with a chalk and a board, when I write, I become Professor Sarandalal, I become Professor Mangla, I become Professor Vadwar, right? वो चीजें कैसे होती हैं? आप में से बहुत सारे ऐसे टीचर्स होंगे जो बचपन में खुद को एज ए टीचर बनकर पढ़ाते होंगे और उनका मेन एम एंड गोल क्या है कि यार मैंने जिंदगी में कुछ क्रिएटिव करना है। तो आपको तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे दी गई है। आपके क्लास में अगर 40 बच्चे हैं, आपको डायरेक्ट स्कूल में 40 स्टूडेंट्स का दे दिया ऑडियंस,
create 40 to 400. That is your start level. Then, जो मैं बोल देता हूँ, 7 times I have given first rank in India. One of my students from Bathinda, Ruchi Jindal. She's a big doctor. यहाँ बठिंडा में भी सीमा is my student. उसके husband dentist है, she was a skin specialist. सीमा गुप्ता. She is my student. तो लॉजिक क्या है? कितना अच्छा लगता है, हर शहर में, हर सिटी में, स्टेट्स में, यूनाइटेड स्टेट्स में बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने हैं. उन्होंने वीडियो डाला है, मेरे को वीडियो भेजे हैं, देख सकते हो. मैं क्यों बोलता हूँ गूगल प्रोफाइल, विपिन शर्मा विजिट्स, क्योंकि हर चीज नेट पे पड़ी है, वो फेक नहीं है. Sometimes you are very humble, then people take you for stumble. But you can make muscle without tumble. Be humble. नानक नीमा जो चलने लगे लगते. वो गोल्डन सिंह जी को फॉलो करो ना. सवाल से एक खड़ा हो. इंस्पिरेशन मिलती है ना. फर्स्ट है. मेरे तो मैं आपको फैक्ट बताता हूँ. आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबॉडी. बट मैं गुरु गोविंद सिंह जी को प्राइमली फॉलो करता हूँ. उनकी हर बात को फॉलो करता हूँ. ही वाज अ सेंट. ही इज सेंट एंड ही इज अ सोल्जर. मतलब एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हमारे अंदर एनर्जी नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते. एस्ट्रोलॉजी ये फियर मॉन्गरिंग करते हैं. ये शनि राहु केतु इतनी दूर तो शनि बैठा हो क्या कर लेगा. असली शनि तो आपके अंदर है. अगर आप खुद ही नहीं काम कर रहे तो शनि एक्टिवेट हो गया, राहु एक्टिव. कुछ नहीं है, ये फियर मॉन्गरिंग है. डोंट बिलीव इन सच थिंग्स. बिलीव इन योरसेल्फ and you find you are angel, you are God. So believe in God. वो आपके अंदर बैठा है. I will answer. Then गाड़ी ज़रा मुझे लंबी होगी answer. Question की ज़्यादा. Now, any more question, dear teachers? Yes, please. Come. मैंने जो लेक्चर देना वो प्रिंटेड फॉर्म में आपको दे दिया है. मैं I have given them a printed picture. We are interacting and discussing the questions. पहले तो इनके लिए क्लैप. और ये बेटा Myself Srishti, I am the mother teacher. बेटा इसको यहाँ रख लो. Myself Srishti, I am the mother teacher of second class. एक मिनट आपको ये भी सिखाता हूँ. जैसे माइक है ना, यहाँ से ऐसे पकड़ते हैं. यहाँ. I am Srishti and are you clear once? तो जब आप यहाँ बोलोगे ये क्या है, मैं आपको बता देता हूँ. इसमें एक कॉइल होती है. जब हम बोलते हैं तो हमारे प्रेशर पड़ता है साउंड का, वो कॉइल वाइब्रेट करती है. उसके साथ मैग्नेट होता है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करंट पैदा होता है. वो करंट जो वॉइस की फ्रीक्वेंसी को मैच करके यहाँ से ट्रांसमिट होके उसमें जाएगा. तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है वापस मैकेनिकल वेव स्पीकर से निकल के आएगा. ये क्या है? साइंस. Myself Srishti, I am the mother teacher of second class, and my question is, sir, how can we deal with the procrastination? I mean, how we can how can we deal with the procrastination? दोबारा I बोलिए. mean, हमारी लाइफ का अगर कोई एम होता है और हम उसको अचीव करना चाहते हैं, बट हम आलस कर जाते हैं. मतलब हाँ, ये दुनिया के सबसे आलसी बंदे को क्वेश्चन पूछो. मतलब बच्चों की भी आदत होती है, अगर हम उनको कुछ कहते हैं कि हाँ ये काम कंप्लीट करके जाता है, वो कहते हैं नहीं मैम हम कल कर देंगे, तो वो काम कल पे छोड़ दिया. मैंने एक सोशल मीडिया पे किसी का सुना, कहता क्या करने जा रहा हूँ, तो सोने जा रहा हूँ. अब क्या करना है, कहता सो के आया हूँ. कहता सोना कब है, कहता जब भी समय मिले सो लेता हूँ. कहता समय मिलता है, कहता तो समय ही मिलता है. देखो बेटा एक चीज बताता हूँ. खुद को मोटिवेट करना, दूसरों को मोटिवेट करना तो बड़ा आसान है. बड़ी बड़ी बातें मान दो, लेकिन खुद को मोटिवेट करना इज अ चैलेंज. कभी कभी वो अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं ना, वैसे वो शायर लुधियानवी जी बोलते हैं मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती है. तो होती तो ये होता, वो होती ये होता, पता नहीं क्या क्या. मैं भी अपने आप से बात करता हूँ, तेरा एम क्या है, रेंज रोवर लेनी है, तेरा एम क्या है, बहुत पैसे कमाने हैं. मैं तो मनी माइंडेड हूँ जी. आई एम ग्रेडी. बुरा
बिना पैसे के हमारी वैल्यू नहीं है। वो ज्ञान ही क्या जिससे हम अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग ना बनाएं। और आपके पास तो फाइनेंशियली स्ट्रांग होने का बहुत बढ़िया तरीका केकेसीएस ने दिया है। दबा के मेहनत करो, स्कूल ग्रो करे एक्सपोनेंशियली, y is equal to e to raise power x। आप भी राइज करोगे, ऑलराइट? हाँ या ना? मेरे साथ बोलो, अ स्कूल, जगराते से बोल देना, जो ना बोले मैं याद आ चोर, बट फिर भी अ स्कूल इज लाइक अ ट्रेन। We must manure it, water it with honesty, hard work, and quality teaching. When it will grow and branch out, we also, being the part of it, grow in size proportionally. तो स्कूल पेड़ की तरह है, अगर स्कूल बड़ा होगा तो हम भी बड़े होंगे। पंजाबी जी की कह रहे हैं, लड्डू जितना बड़ा होएगा और नहीं बड़ा पार्ट मिलेगा। मेरी नजर में, आई डोंट नो आप कैसे नैरेटिव लेते हो, क्या आपके अंदर की फिलॉसफी है। मेरी फिलॉसफी तो बड़ी सिंपल है, अगर आप बेस्ट दे रहे हो स्कूल को, स्कूल आपको छोड़ेगा ही नहीं। ऑलराइट? स्कूल आपको नहीं छोड़ेगा, गारंटी है, पर उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत के बिना कष्ट कृष्ण नहीं मिलता। अब आप बोलो मेहनत कैसे करें? उसके लिए नोबडी कैन टीच यू, वो आप खुद ही अपना रास्ता डिसाइड करेंगे। बट इंटरनेट के जमाने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में आप गजब कर सकते हो जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरे लिए भी उतनी नहीं है जितनी आपके लिए है, हर स्टूडेंट के लिए है। हम लोग अभी से बहुत गजब कर सकते हैं। टीचर इज ऑलवेज ए गुड स्टूडेंट। एक परसेंटेज के ऊपर आप ज्यादा फोकस मत किया करो। मेरे साथ एक लाइन बोलेंगे, परसेंटेज इज नॉट measurement of one's intelligence. One learns through one's own observation. However, a teacher is a positive catalyst who increases rate of observation. तो परसेंटेज कभी ज्यादा आती है, कभी कम आती है। बच्चे को उस चीज पे मत डालो कि तेरी परसेंटेज लो है तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। बड़ा बेटा, बच्चे के साथ कनेक्ट कैसे करो? मेरे तो सिर्फ कम आते थे मार्क्स। क्या बताते इस पर मार्क्स क्यों आए? मैं पता नहीं, मैं फंबल कर गया तो कोई ना दोबारा कर दे। गिव हिम स्पेस। उसकी फेलियर को टॉन्टिंग वे से उसको मत पॉइंट आउट करो। छोटा बच्चा बेइज्जती बहुत महसूस करता है, आप उनको हल्का से कुछ बोल दो, वो बहुत नेगेटिव लेता है इस चीज को। यू वांट टू से समथिंग? ओके, अच्छा, आई थॉट के यू वांट टू से समथिंग। सो हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? Yes, sir. एनीवन? My dear child, you have to walk. Okay? And you just walk fast. Stay here. देखिए, this is a mic for you. Thank you, sir. Yes, please. Come here. Good afternoon, everyone. She said कि ये जैसे आलस होता है हमें काम में, procrastination. I have read a book, Eat That Frog. It was really a very nice book. Sometimes क्या होता है, कोई भी काम, suppose I am having 5 works to do. Continue, बोलो। क्या रहता है कि हमें लगता है कि हम बड़ा काम पहले, मोस्टली लोग ऐसा करते हैं कि बड़ा पहले फिनिश हो जाए, उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। मैंने जो सीखा है, मुझे लगता है कि आई थिंक वी शुड सम अप द स्मॉल वर्क एट फर्स्ट। उससे हमें क्या होता है कि हमें जल्दी, जब वो एक काम, सपोज हमारे 5 काम थे, हमने छोटे वाला काम पहले कर लिया, फिर सेकेंड वाला कर लिया, मतलब हमने उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, A B C D जितना भी है, तो उससे हमें एक मोटिवेशन मिल जाता है कि मेरे इतने काम
हो गए हैं, और जो ये प्रोक्रास्टिनेशन का हमारे फंडा दिमाग में चल रहा होता है ये निकल जाता है. तो आई थिंक वी शुड प्लान आवर वर्क एंड वी कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम. सो मस्ट रीड दैट बुक. मैंने इतनी वर्कशॉप्स ली हैं. एक हमारे मैथ्स में है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इन्होंने वो कर दिया. कम यार बेटा, आपको पता ही नहीं है ये लोग गुरु हैं. मैं जितना छोटे बच्चों से सीखता हूं ना जी, बुरा ना मानना, आपको छोड़ के बड़े में ईगो बड़ी होती है. तुम मेनू सिखाएगा. मेरी कोशिश होती है मैं अपने स्टाफ में, एक्सपीरियंस क्या है सर? कोई नहीं है, आजा सर, आई हैव गॉट 25 years एक्सपीरियंस. मैं कहा इन्हें गल ही नहीं मननी. मैं कहा ये ऑलरेडी भरया हुआ है टोकरी ऊपर तक, इन्हें कुछ नहीं मनना. सी कहीं से भी कुछ भी सीखने को मिलता है ना, बहुत अच्छा लगता है. आपसे जो मैंने सीखा है आज तक किसी वर्कशॉप में ऐसे नहीं बोला किसी ने. तो बेटा जैसे आप लोग इंटरेक्ट करते हो, आपस में भी आप इंटरेक्ट करते हो. हाँ, ये ऑनेस्ट आंसर है. क्योंकि आपको एक अंदर की बात बताता हूं. पॉलिटिक्स इन एनी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन इज लाइक ए टर्माइट. इट इरोड्स द सिस्टम. राजनीति घटिया दीमक की तरह इंस्टीट्यूट को चाट जाती है, जिसमें स्कूल के हेड्स को फर्क नहीं पड़ता, फर्क हमें पड़ता है. एक संस्था है, उसमें 350 लोग काम करते हैं. मैंने कहा तुम सैलरी मिल रही है ना, और जो सैलरी इस जगह पे आपको मिल रही है दूसरा तो कोई दे नहीं रहा है, तो क्यों ना आप इस सिस्टम के लिए और काम करो ताकि आप और ग्रो करो. लो सर सोनू की फायदा है. मैं कहा दिस इज व्हाट अनफॉर्चुनेट. जब आपको जरूरत होती है तो आप सिफारिश लगवाते हो, जब आपकी जरूरत फुलफिल हो जाती है, फिर जब आप पंजाबी च कहते ना गधे नु नमक कुत्ते नु देसी की मूर्ख नु इज्जत हजम नहीं होती. तो हम इंसान हैं, तो हमें इस चीज में जाना कि हाउ वी कैन ग्रो. कोई भी इंस्टीट्यूट जो है वो बिल्डिंग से, फर्नीचर से नहीं बनता, सभी जानते हैं. वो आप सबसे बनता है. और आप जो उनको कैटर कर रहे हो बच्चों को, क्या कर रहे हो भाई आप? मैं तो क्लास में जाऊंगा, सिर्फ चाक होगा और कुछ नहीं होगा. मुझे एक बच्चा क्वेश्चन पूछता, एनी क्वेश्चन? गॉड ब्लेस यू, वेरी, इसके लिए ताली तो हो जाए. लेकिन ये है नाइल बोहर, ठीक है, ये है रदरफोर्ड. इन्होंने स्टार्ट किया और इन्होंने रेक्टिफाई और अच्छा किया. गॉड ब्लेस यू. और कुछ ये देखो, ये यंगस्टर जो है ना, ये यहां से सीख. 2 मिनट रुक जा, मेरे को हेल्प भी चाहिए थोड़ी सी. तो बहुत प्यारा बच्चा. आर यू स्टूडेंट और ए टीचर? शी लुक्स लाइक ए स्टूडेंट. मेरे को, मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूं, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत ही प्रैक्टिकल. मैं क्लास में, मेरे को टीचर पढ़ा रहे थे. बड़ा सिंपल सा एक एग्जाम्पल है, बोर नहीं करूंगा. बोलते एवरी मटेरियल बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद ए डायरेक्ट फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. आप इसमें मत डरना, इससे मत डरना. दुनिया में हर वस्तु किसी दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है, और वो उसके प्रोडक्ट ऑफ मासेस, मासेस को हिंदी में पुंज बोलते हैं, दी डिस्टेंस के वो स्क्वायर में. बेल बज गई, क्लास खत्म हो गई. हमारे चंडीगढ़ सेक्टर 22B में एक रमेश है समोसे वाला. तो मैं अपना बैग लेके चला गया. स्कूल के बाद 3:30 बजे समोसे निकालता था. उस वक्त रेडियो चलता था, ऑल इंडिया रेडियो. उसमें गाने आते थे, ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है ऐसे. तो वो गाने जरूर सुनता था. साथ में रेडियो के नीचे उसने स्पीकर रखा हुआ था, इधर समोसे.
तो मैंने बैग खोला ऐसे, मैंने कहा यार मैडम ने पढ़ाया एवरी मटेरियल बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद ए फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। समोसा आ जा। वो देख रहे हैं मेरी हरकतें क्या अजीब सी हैं, सच बता रहा हूं मैं, फैक्ट बता रहा हूं। तो उस वक्त वो बोलता अगला नगमा शैलेंद्र सिंह की आवाज में, फिल्म है खेल खेल में, संगीत दिया है मौसीकी आर.डी. बर्मन जनाब की। तो मैं समोसे को देख रहा हूं, आजा आजा, उधर से रेडियो पे गाना चल रहा है, हमने तुमको देखा तुमने हमको देखा कैसे, हम तुम सनम सातों जन्म मिलते रहे यूं ऐसे। मैं कहा समोसा जैसे आजा। समोसा ऐसे कैसे आएगा? मैं कहा मैडम ने पढ़ाया। अगले दिन मैं क्लास में चला गया, मैडम उसको पूछा मैडम समोसा क्यों नहीं आया? स्टॉप यू लोफर, गेट आउट। क्लास के बाद वहां प्रिंसिपल राउंड पे, क्या बात, पहले ये नहीं पूछते तो बाहर खड़ा है, सिद्धि दो। आजकल तो पूछना पड़ता है रीजन। फिर मैम बोलती F is equal to GMM upon D square, G is called constant of proportionality। मैं कह मैडम ये क्यों लगाते हैं? हर क्लास में 4-5 चमचे आगे बैठे होते हैं। चमचा, सर चमचा जिस भी बर्तन में घुसता उसको खाली कर देता है, याद रखना। सो वो चमचे का करिकुलम भी होता है। सर ये टाइम, मैम ये टाइम वेस्ट कर रहा है, ही इज वेरी नॉन श्योर, यस हमारा सिलेबस, यस यस, और मैम के पास आंसर नहीं है, गेट आउट। अब प्रिंसिपल फिर राउंड पे कहता क्या प्रॉब्लम है? मैं कहा सर समोसा नहीं आया, उस दिन ये नहीं बताया, ये जी क्यों लगाया ये नहीं बताया। अब सर को थोड़ी सी दया आ गई। बेसिकली ही इज अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। कहता तेरा लॉजिक क्या है? मैं कहता यार बात तो तेरी सही है, तेरे को निकाल क्यों रही है? फिर अब मैडम बोलती है, प्रिंसिपल सर चले गए कि मैडम ये जी क्यों लगाया? सर सिंपल है, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, इसको जब रिमूव करेंगे तो इक्वल आएगा, साथ में कांस्टेंट आएगा, ये वापस जाएंगे तो। प्रिंसिपल बोलते अरे अपनी वीसीआर कैसेट में इसी को देख के तो मैं भी खुश होता था, उल्टे फेरे, कार में बैठ के वापस कुंवारापन। कितनी इससे क्या है? मैडम आंसर तो बताओ। मैडम के पास कोई आंसर नहीं है, मुझे मिला भी नहीं कभी। फिर मैंने इसमें वर्कआउट किया। मैंने बोला टीचिंग ऑफ ए टीचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम यू स्पेंड विद हिम। किसी भी टीचर का टीचिंग क्वालिटी जनरल मैम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम यू स्पेंड विद हिम। जितना टीचर के पास आप क्लास लगाओगे, उसका नॉलेज कंटेंट सीखोगे, उतना टीचिंग आएगी। अंडरस्टूड है ना? Teaching of a teacher is equal to k times the time you spend with him. K is called constant of proportionality. If k is greater than 0, teacher has got a knowledge. All electrons revolve in certain permissible orbits where angular momentum is nh upon 2 pi, mvr equal to nh upon 2 pi. Angular momentum is the moment of linear momentum, L equal to r cross p. It is a axial vector. कुछ भी पूछो उसको आना चाहिए। a प्लस बी टू 4, 1 4 का 6, 6 4 का 1, a टू 4, 4 a क्यूब is 6 a स्क्वायर b स्क्वायर, 4 a b क्यूब प्लस b टू 4, है ना? इफ k इज इक्वल टू 0, टीचर क्लास में किताब लाएगा, पोडियम में छुपाएगा, नीचे देखो ऊपर देखो हड्डियां तोड़ दूं, लिखो सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन। वो किताब या कॉपी छुपा के लाया है या लाई है, पोडियम में छुपा के कॉपी पेस्ट। इफ के इज लेस देन 0, तेन टीचर किने बनाया? खुद नहीं दिया, उसको कुछ नहीं आता। इट मीन्स कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डिटरमिन्स द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशन। तो जी का वैल्यू 6.7 10 to -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर, विच इज नियरली इक्वल टू 0। तो ये एप्लीकेबल डे टू डे लाइफ में नहीं है, इसलिए समोसा नहीं आया। दैट शुड हैव बीन द आंसर। मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा, मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रहा, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब पंजाबी में
मैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी गया तो मेरा फ्रेंड बोलता तू यार लड़के दे हॉस्टल च आ जा। अब मैं थोड़ा नलायक आदमी, तो मैं गया यार, मैं कहा यार तुहाडे तां इत्थे 2 हॉस्टल ने, दोनों ही कुड़ियां दे हैं। वो कहना तू पागल है? मैं कहता तेन आज पता लगे? मैं कहा 2 ही हॉस्टल है। कहता आजा अंदर। मैं कहा इत्थे लड़कियां लिखा है तो आजा बस अंदर। मैं अंदर गया, उत्थे मैडम बैठी, कौन है? मैं कहा मैं गुरप्रीत नूं मिलना है। ये कोई तरीका है? दिस इज गर्ल्स हॉस्टल। मैं कहा मैडम गुरप्रीत सिंह इत्थे सिंह नहीं है, गुरप्रीत कौन हो सकती है, पर तू किवें अंदर आ गया? असीं अगे चले गए। मैं कहा यार कित्थे है? कहंदा तुसीं कित्थे हो? मैं कहा वेरका दे बूथ कोल। कहंदा वो सामने ही है। मैं कहा तो लड़कियां, कहंदा वो नहीं यार तू नलायक है, सिहारी बिहारी नाल पंजाबी च सैक्स चेंज हो जाता है, मेल फीमेल हो जाता है। हुण पंजाबी दी एक अपना चैलेंज है। पंजाबी लिखण वाली तो सेम है, बोलन वाली अलग है, लेकिन पंजाबी दे टीचर नूं एक चैलेंज है। हुण जे तुसीं मानसा डिस्ट्रिक्ट च लिखोगे ओ जी दशहरे दे मेले च रावण देखण गए, सोडे लवे रावण है, सोडे लवे रावण है। हुण जे ओही दशहरे दे ऐसे अमृतसर चले जाओ, साडे पिंड च मेला लगन डया सी जी, रावण वेखण डए सी, ठीक है। जे वो साडे पटियाले चल जाए थे पौधी है, तो लॉजिक क्या है? बोलन दी भाषा च बच्चा लिख दिंदा है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है यू कैन एक्सेप्ट इट। तुसीं पढ़दे ही नहीं। मैं 15-20 वर्कशॉप्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 3 ते कीतियां ने, फ्लॉप। वजह इंप्लीमेंटेशन ही नहीं है। टीचर्स नॉट विलिंग टू इंप्लीमेंट। मैं थोड़ी गल दिस द बेस्ट हो। सो डियर टीचर्स, बड़ा कुछ है। अब हिंदी वाली मैम बोलती है मैं इसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाऊं। मैं कहा मैम हमें बोलते थे क्रिया किसे कहते हैं, हम बोलते थे जब दादाजी पूरे हुए तो क्रिया हुई। मैं कहा वो नहीं। अब हिंदी में भी बहुत फन है। मिला रहे तो नर रहे, अलग हुए तो नार, सोने जैसा रंग है, कोई इंटेलिजेंट करे विचार, क्या हो सकता है? मिला रहे तो नर रहे, अगर वो जुड़ा हुआ है तो वो मेल है, अलग हुए तो मेल नहीं फीमेल है। पता क्या? चना। मिला रहे तो नर रहे, चना छोले। कोई छोली नहीं बोलता, असी छोली भटूरी खाएगी नहीं, छोला भटूरे, छोले भटूरे। अलग हुए तो चने की दाल, गोल्डन कलर। तो बहुत फन है। यू हैव टू फॉल इन लव विद योर सब्जेक्ट। हुण मैनू पंजाबी दे टीचर ने लिखे, बोलिया भी तो 150 शब्द लिख, कुछ भी लिख, 150 पंजाबी च। मैं कहा जी ठीक है। साडा शरारती दिमाग शुरू तो रहा है, हुण भी है। मैं कहा हेडलाइन मैनू ना पढ़ो, तुसी मैनू क्यों पढ़ी जा रहे हो? दे कुछ नहीं है, फिर भी तुसी पढ़ी जा रहे हो। जो पढ़ोगे कुछ मिलेगा ही नहीं, थोड़ा दिमाग हिलिया हुआ, फिर भी पढ़ी जा रहे हो। पढ़ी जाओ, की मिले? कुछ नहीं। करते करते देखा 450 शब्द, मास्टर ने मारता काटा। कहते तू की लिखा है? मैं कहा आपने बोला राइट एनीथिंग 150 वर्ड्स एंड आई हैव रिटन 400। एक्स्ट्रा शीट लगाइए सर। इट मींस आई एम इंटेलिजेंट, बट दैट हैज बीन, ऊपर हेडलाइन भी जस्टिफाइड है, मेनू ना पढ़ो। सो डियर टीचर्स, कभी कभी अपने अंदर वो बचपन जरूर रखो, उसको मत मरने दो। एनर्जी ही एज होती है। आप 70 साल की, 71 साल की उम्र में 17 साल की तरह काम कर सकते हो। आई कोट देवानंद सर। मैंने गुरदासपुर में सर 3-4 वर्कशॉप्स ली, 3-4। तो गुरदासपुर की मिट्टी में क्या है? गुरदासपुर में प्रिंसिपल है, ओ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज साडे विच सर आए ने, सानू बड़ी खुशी है कि सर साडे विच आके लेक्चर देंगे। चले गए। उसके बाद एक टीचर आया, मैं हिंदी का टीचर हूं, मैं हिंदी पढ़ाता हूं और हिंदी मेरे अंदर घुसी हुई है, ये है वो है। मैं क्या भरा अज पता लग गया भी इत्थे दा पानी पी के बंदा सीधा होके गल क्यों नहीं करता, सारे देवानंद क्यों बन जाते हैं। सो मिट्टी का बड़ा फर्क पैंदा है साडे उत्ते, साडी एनवायरनमेंट का बड़ा फर्क पैंदा साडे उत्ते, which we are not willing to accept because we are not willing to grow. So आप लोगों को एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं लास्ट में। मुझे ये माइक से बड़ा डर लगता था। जैसे मेरी बहन आई थी ना अभी, वो जो डॉग वाला बनाया था, तो आप थोड़ा कांप रहे थे ऐसे ऐसे, am I right? अब
मैं भी कांप रहा था। तो हम सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, आज 2 मिनट, हम सरकारी स्कूल में पढ़े हैं सर। तो हमारे एक सर होते थे मास्टर हंसराज, वो स्पोर्ट्स टीचर थे। क्या थे? ठीक है सर। सो वो मारते पहले थे, बाद में पूछते थे कुछ। और उनका एक दोस्त था प्रेम सर। वो जो प्रेम सर थे वो हिंदी के टीचर थे।